السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا جو کام ہے میں بہت انسپائر ہوا اس سے، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں ایک خواجہ مظہر صدیقی صاحب پیدا کرے، جو انسانیت کا آپ کے اندر درد ہے، جتنا آپ ورک کر رہے ہیں انسانیت کے لیے۔ آپ ایک ارتقا آرگنائزیشن کے سی او ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اور آپ کافی سارے انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں اور ٹرینر بھی ہیں۔ میں نے کافی سارے آپ کے کالم بھی جو ہے وہ پڑھے ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، ان کو بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے میں نے ایسے کالم پڑھے، اور خاص طور پر آپ بچوں کی تربیت پر آپ کا بہت زیادہ ورک ہے اور کر رہے ہیں۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ویژن ہے آپ کا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ ملتان تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ ہم کچھ باتیں آپ کی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے یہ بھی عزت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک آپ میرے کاموں کی بات کر رہے ہیں، یا جو خیر کے، بھلائی کے، اچھائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، میں سر انجام دیتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، تو اس نے مجھے کچھ کاموں کے لیے چنا ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں وہ ذہنی اور فکری تربیت کا کام ہے، کردار سازی کا کام ہے، ذہن سازی کا کام ہے، شخصیت کی تعمیر کا کام ہے۔ میں وہ یہ احسن انداز میں سر انجام دیتا ہوں۔ میرا چونکہ آپ نے وی ایم پوچھا ہے، میرا وی ایم یہ ہے کہ ٹو لیڈ دا رائٹ پرسن ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن، لوگوں کو صحیح سمت رہنمائی دے دے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ دوڑیں، آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، چل نہیں سکتے تو آپ رینگیں۔ آپ کو کچھ حرکت میں رہنا چاہیے، کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور اس کو مستقل مزاجی سے قدم بہ قدم، قدم بہ قدم، قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، تو رب بھی آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ وہ آپ کو ناکام و نامراد نہیں قرار دینا چاہتا، نہ ہی آپ کو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہارتے رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ منزل کو پائیں، آپ کامیابی حاصل کریں، آپ کو رفتیں اور بلندیں اور عظمتیں حاصل ہوں۔ رب کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ تو میں اصل میں ذہن سازی، شخصیت سازی، کردار سازی کے کام میں پڑا تھا، اس کام کی طرف آگے بڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ میدان کھلا چھوڑ۔ میں اکیلا تھا اور مجھے ساتھی ملتے گئے، معاون ملتے گئے، معاونت ملتی گئی، دوست گرانٹ لے کے آتے رہے، ڈونیشن لے کے آتے رہے، اور ہم پھر اس کام میں آگے بڑھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، میری کوئی جدوجہد نہیں، میری کوئی کوشش نہیں، بس اس قابل بنایا ہوا ہے کہ میں اپنی بساط پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ سر، ایک بہت اہم سوال ہے جو میرے استاد صاحب نے میرے ذمہ لگایا، اور بہت سارے دوست بھی کہتے ہیں، جو ہمارا آج کل ایشو چل رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کا، ہماری ینگ جنریشن کا، کہ ان کے اندر نا سٹریس ہے بہت زیادہ۔ ایک تو جو بچے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد جابز نہیں ہے، اوپر سے پھر پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے، اور سر یہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو ریلیٹ کر دیا ہے جاب سے، پیسے سے، جس کی وجہ سے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ ایون کہ سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سر اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن، اینگزائٹی، اسٹریس، یہ بھی خاندان ہے۔ جیسے ڈر ہے، خوف ہے، جھجکنا ہے، جس کو شائنس کہتے ہیں، اسی طرح کچھ فوبیا ہے، یہ سارے ایک ہی خاندان کے امراض ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک بڑا مرض بن جاتی ہیں، اسٹریس۔
टेंशन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, ये सब चीजें ये ज़हनी कैफियत है। जी जैसे मैंने एक शाइनेस कहा, आप शर्म होती है, झिझक होती है, फिर फियर आ जाता है, फिर जी फोबिया बन जाता है। तो ये सारे ना ज़हनी और नफ्सियाती अमराज है। शुरू में ये हम इसके आदी नहीं होते, तो ये बढ़ते बढ़ते मर्ज बन जाते जी हैं। तो कुछ चीजें हैं जो शुरू में कवर की जा सकती हैं और कुछ नहीं की जाती। और जहां तक आपका ये सवाल है कि स्ट्रेस नौजवानों में बढ़ा है, उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे रिसर्च के बाद समझ आई है, मैंने कुछ लोगों पर स्टडी किया, मुझे ये समझ आई है कि 3 चीजें हमारी जिंदगियों में नहीं, जो बचपन से होनी चाहिए। पहली चीज जो हमारी जिंदगियों में नहीं है वो है कि हम कमिटमेंट पूरी नहीं करते। हाँ जी commitment। कोई भी कॉल, कोई भी वादा, कोई भी करार हम करते हैं उसको पूरा नहीं करते। और दूसरी चीज जो है वो जो मैंने देखी है कि हमारी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज। हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते। हम बस यूं समझ लीजिए कि अनाप शनाप जिंदगी गुजारते हैं, अलग तब जिंदगी गुजारते हैं, कोई ढब नहीं है हमारी जिंदगी का, जी कोई मकसद नहीं है। तो पहली चीज ये कि कमिटमेंट नहीं होती हमारी जिंदगी में। दूसरी चीज ये है कि लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है। और तीसरी चीज ये, हम जिस काम से व्यवस्था है, मतलब हम तालीम हासिल कर रहे हैं, जी हम कहीं जॉब करते हैं, हमने अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया। डेवलप नहीं किया। हम बस अंधेरे में जी रहे हैं, तो बस अंधेरे को कबूल किया हुआ है। हम पस्तियों में हैं तो हमने पस्ती को अपने गले का हार बना लिया। हाँ हम अगर किसी महरूमी का शिकार है, शिकवे शिकायत का शिकार है, कुछ चीजें कम है, तो उसमें भी हम ये किए हुए हैं कि हमने अपने आप को उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करके उसको माथे का झूमर बना लिया। तो होना ये चाहिए सर, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में पहले तो आप कमिटमेंट को समझें। जी लेकिन बिल्कुल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्हें कोई शख्स कहता है कि आप यहाँ बैठे, मैं आया, वो जाके घर भूल जाता है। 3 दिन बाद जब वो यहाँ से गुजरता है, वहां से तो देखता है आप सल्लम बैठे हुए हैं, तो वो कहता है कि आप यहाँ कैसे आती, आप ही बिठा के गए थे। ये है हाँ कमिटमेंट। हम तो अहद शिकनी, वादा खिलाफी के चैंपियन हैं। हम तो इस दौड़ में सबसे नंबर 1 पे हैं। इससे अच्छा। लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है। आप यहाँ से देख लें कि हमारे खाने पीने के औकात भी मुकर्रर नहीं है। मुकर्रर बच्चा नहीं। है, नौजवान है। आज सुबह मेरा एक सेशन था एक स्कूल में, तो मुझे उस्ताद कहने लगे, स्कूल के डायरेक्टर, कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मैं कि 4 बुनियादी चीजें इनको सिखाऊंगा। एक तो ये सेहत का ख्याल रखें बचपन से, जी बिल्कुल। 1-2 क्लास से अपनी सेहत का ख्याल। दूसरा, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें, अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को भी साफ रखें, अपने क्लासरूम को, अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने सहन को, अपने बरामदे को, ये साफ सुथरा रखें। तीसरी बात यह है कि अपनी खुराक और गजा का ख्याल रखें। जी हमारी खुराक और गजा नाकिस है। हमारे बच्चे पापड़ खाते हैं, गंदी अशिया खाते हैं, यानी कि वो अशिया जो मुजरे सेहत है, वो खुराक भी ऐसी है और गजा भी ऐसी है। और खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ शेड्यूल नहीं है कि आपने 12 बजे लंच करना है या 1 बजे करना है। हम 4 बजे हमारे यहाँ लोग लंच कर रहे होते हैं, लंच कर रहे और हमारे यहाँ मैंने देखा कि 11-12 बजे लोग नाश्ता कर रहे हैं। हैं। ठीक है। और रात को 11 बजे जनाब वो मोहल्ले में सड़क पे वो जो चापे लगा के खड़ा होता है जी, जी वो सारी मट्टी, हाँ, डस्ट, सारी गंदगी उसमें जा रही थी और हमें मजा आ रहा था, हम जहर खा रहे थे। ऐसा। कोई शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। और हमारी जो खुराक है, हमारी जो गजा है बचपन से अब तक, वो बिल्कुल नाकिस है। जी शेड्यूल नहीं है कि कब खाना है। हम सलाद नहीं खाते, फल नहीं खाते, हम नाकिस गजा खाते हैं। तो उसका नतीजा आपके सामने ये कि लोग ज़हनी अमराज का भी शिकार होंगे, जिस्मानी अमराज का भी शिकार होंगे, और फिर रूहानियत तो हमसे बहुत दूर चली जाती है। बहुत दूर से। तो हम उस मैदान में तो छलांग लगाते ही नहीं है। तीसरी बात जो मैंने कहा, मैं आपके चौथी बात जो मैं आपके बच्चों को बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आप वक्त का ख्याल रखें, अपने वक्त को जाया न करें। ये 4 चीजें अगर बच्चों को समझा दी जाएं कि आपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है, आपने अपने वक्त की तंजीम कैसे करनी है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उसमें जो पहली चीजें हैं वो सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाती हैं, जो अगली चीजें वो टाइम मैनेजमेंट में आ जाती हैं। इब्तदाई दिनों से, यानी आप ये देख लें कि जो मगरबी ममालिक हैं या जिनका तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, वो 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में आने पर भी उसको ये कहते हैं अपना क्लासरूम खुद साफ करना जी है, अपना वॉशरूम खुद साफ करना है, और अपनी चीजों को डस्टबिन में आपने खुद ही डालना है। हम देखें सर, हम कुछ भी नहीं सिखाते। तो जब बच्चा कुछ नहीं सीखा होगा, कमिटमेंट नहीं होगी, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, और लाइफ डेवलपमेंट नहीं होगी, और फिर उसके बाद जो है वो किसी भी तरह से
آپ اسے کامیاب شخص نہیں کرا دیتے, وہ اسٹریس کا مریض ہوگا. اور اسٹریس کیا ہے سر؟ یہ ذہنی تناؤ ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے. اسٹریس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. اسٹریس اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام مکمل نہیں کر پاتے. پاکستان میں یہ بات میں 20 برس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کاموں کو ٹالنے کے حساب سے پاکستان میں سب سے بڑے چیمپئن ہیں. ہم آج کے کام کو کل پہ چھوڑتے ہیں, ہم ٹال مٹول کرتے ہیں, چیزوں کو مؤخر کرتے ہیں. بجلی کا بل بھرنا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی کی فیس دینی ہے, ٹیکس پے کرنا ہے, ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں. ایون کہ امتحان کی تیاری ہے, ہم نے کہیں بعد میں ملک کا سفر کرنا ہے, اندرون ملک میں سفر کرنا ہے, ہم کہتے ہیں کر لیں گے, کل دیکھ لیں گے. آپ کو رات کو یونیفارم پریس کرنی ہوتی تو آپ کہتے صبح اٹھ کے کر لیں گے, صبح بجلی بھی نہیں ہوتی. یعنی سب سے بری عادت جو انسانوں میں ہوتی ہے وہ ٹال مٹول کی عادت, وہ ہم میں ہے. تو پھر جب ہم وقت پر کام نہیں کریں گے, امتحان کی تیاری نہیں کریں گے, ابھی آپ نے کہا اسٹوڈنٹ سوسائڈ کرتے ہیں, اس وجہ سے کرتے ہیں ان کو کسی نے ٹائم مینجمنٹ سکھائی نہیں. وہ آخری مہینے میں تیاری کرنا شروع کرتے ہیں امتحان کی, اور وہ 11 مہینے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ سر بہت بنیادی باتیں ہیں, تربیت کی باتیں ہیں, جو اگر بچوں کو شروع میں بتا دی جائیں تو وہ ان میں اسٹریس نہیں آئے گا. یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے, آپ کام مکمل نہیں کر پاتے, آپ کو باس کی ڈانٹ کا ڈر ہے, آپ کو ٹیچر کی ڈانٹ کا ڈر ہے, آپ کو والد کی ڈانٹ کا ڈر ہے, اور آپ اس ڈر سے اب فوبیا کا شکار ہو گے. تو یہ سر بہت بنیادی چیزیں ہیں. اگر بچے کو اسٹریس سے بتانا چاہتے ہیں تو اس کو کمٹمنٹ کا پورا کرائیں, اس کی لائف کو اور اس کے سسٹم کو ڈیولپ کریں. یقین کریں آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. بہت شکریہ سر, بہت قیمتی باتیں بتائی آپ نے. اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں تو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک چیز ہے. جی جی. اگر اپنے بچے کو ٹائم مینجمنٹ بیسک ہی نہیں سکھاتے, اس کی ارلی ایج میں نہیں سکھاتے. فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ لیٹ اسکول جا رہا ہے, کالج لیٹ جا رہا ہے, کوئی بھی کام لیٹ کر رہا ہے, تو شاید اسے اس وقت جو ہے وہ پتہ نہ چلے وقت کی قیمت کا, لیکن وہ اس کی ایسے عادت بن جاتی ہے کہ جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو وہ ٹائم مینج نہیں کر پاتا. جی میں آپ کو ایک بات عرض کروں, عادتیں جو ہے نا بچپن میں ان کا بیج بونا پڑتا ہے. بیج بونا پڑتا ہے, پھر اس پر فصل تیار ہوتی ہے. اب جس قسم کا بیج بھی کوالٹی ہوتی ہے. جی, بیج میں آپ جتنی اچھی کوالٹی کا بیج ڈالیں گے نا, ایسے عادتیں بھی کوالٹی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جس اسکول کا ڈائریکٹر ہوں وہاں مجھے بتایا کہ یہ 2 بچے جو ہے نا جی, یہ کبھی وقت پر نہیں آتے. مجھے کہا گیا, مجھے شکایت دی گئی, یہ 2 بچے ہیں, یہ آصف ہے, یہ اب ایڈی ہے, اللہ دیتا ہے, یہ کبھی وقت میں نہیں آتے. مجھے بڑی پریشانی ہوئی. میں نے ان بچوں کو آفس میں بلایا اور میں نے پوچھا اسکول کا ٹائم کیا ہے؟ میں نے کہا صبح 8 بجے. میں نے کہا آپ کے لیے اسکول کا ٹائم 7:30 بجے, آپ دونوں نے 7:30 بجے آ گئے, آپ کا 8 بجے ٹائم نہیں ہے. وہ کہنے لگے سر باقی تو سب 8 بجے آتے ہیں. میں نے کہا آپ 2 بچوں کا ٹائم اور آپ کے لیے انعام ہے, آپ نے 7:30 بجے. سر اف یو بلیو, آپ یقین نہیں کریں گے, وہ اگلے دن بچے اسکول کھلنے سے پہلے وہاں پہلے آ گئے. میں نے ان کو انعام کا لالچ ضرور دیا, مگر میں نے ان کا ٹائم پہلے کر دیا. وہ لوگ جو بس پہ ٹرین پہ دیر سے پہنچتے ہیں, میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بس کا جو ٹائم ہے نا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے چیز سمجھا کریں. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, بیٹا اسکول کالج یونیورسٹی یا دفتر کا جو ٹائم ہے, جو ٹائم دفتر کا لکھا ہو آپ نے اس سے 20 منٹ پہلے جانا. آپ جب ٹائم پہ پہنچیں گے, جو ٹائم دیے گا تو سمجھے آپ لیٹ پہنچے. تو بچوں کو, نوجوانوں کو یہ میسج اسکول سے, اسکول کیا ہے سر؟ اسکول اصل میں تربیت کا ادارہ ہے, یہ ایک نرسری ہے, یہ ایک بنیادی جو ہے نا پرائمری ایجوکیشن نہیں, پرائمری ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے, PTC ہونا چاہیے اس کو. تو پرائمری ٹریننگ سینٹر میں بچوں کو یہ بتایا جائے, سکھایا جائے کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے. اور پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو وقت پر نہیں آتا اس کو تو سزا دی جاتی ہے, اس کو تو فائن کیا جاتا ہے, اس کو تو گراؤنڈ میں سزا میں ہاتھ اونچے کر کے کوئی نہ کوئی پنش کی جاتی ہے, فائن کیا جاتا ہے. مگر جو پہلے آیا ہے اس کو تو کبھی کسی نے شاباش نہیں دیا, اس کو تو کبھی کسی نے انعام نہیں دیا, اس کو تو اسمبلی میں کھڑا ہو کے کبھی کسی نے کہا یہ ایکسیلنٹ بچہ ہے ہمارا, یہ بہت اچھا بچہ ہے, اس کی پرفارمنس یہ ہے. جو بین الاقوامی ادارے ہیں, تعلیمی ادارے, وہاں سر 2 نمبر ہوتے ہیں وقت پہ آنے والے. سال بعد جب نمبر لگتے ہیں تو 2 نمبر اس بات کے ہوتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے آتے ہیں, اور 2 نمبر اس بات کے ہیں کہ یہ اپنا لنچ دوستوں سے شیئر کرتا تھا, اپنا پین پینسل ریزر اپنی کاپی دوستوں سے شیئر کرتا تھا, اپنی دوستوں کی ضرورت کو پوری کرتا تھا, مدد کرتا تھا, سہارا بنتا تھا, ضرورت کے وقت کام آتا تھا. 2 نمبر اس بات کے.
اور 2 नंबर इस बात के हैं, ये फ्रेंडली रहता है, ये दोस्त बन के रहता है, ये ऑर्डर नहीं करता, ये हाकिम नहीं बनता, हुक्म नहीं चलाता, ये लड़ाई नहीं करता, ये गाली नहीं देता। इस बात के एटीट्यूड के, फ्रेंडली एटीट्यूड के भी 2 नंबर है। अब जहाँ सिर्फ ढंडाई हो, गाली गलौची हो, डांट डपट हो, चीखना चिल्लाना हो, मारना पीटना हो, वहां इनाम वाला भी और सजा वाला भी बराबर एक एक तराजू में तोले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बुनियाद से दुरुस्त होने की जरूरत है। हमने अगर इमारत खड़ी करनी है, उसकी बुनियाद अगर ठीक नहीं होगी तो वो इमारत टेढ़ी होगी, वो दीवार टेढ़ी होगी। आपने अगर दीवार को सीधा रखना है तो बुनियाद को दुरुस्त करें, और बुनियाद हमारे बच्चे हैं। ये जितने आपके पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, ये नाखवानगी की वजह से नहीं है, तरबियत की वजह से। मेरी अहलिया जो है, मेरी अहलिया है, वो मुझे हमेशा ये कहती है कि आप हर वक्त कहते हैं तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें। अब ये हर जगह, हर इंटरव्यू में, हर लेक्चर में, हर तकरीर में ये कहते हैं। आप तरबियत में जोर क्यों नहीं देते? तालीम ना भी हो, तरबियत अच्छी हो तो इंसान बाशऊर हो जाता है। तरबियत इंसान को सुधारती है, तरबियत इंसान को संवारती है। तरबियत ऐसी है जैसे सर आपने प्लेन कपड़े पहने हुए, मैंने प्लेन कपड़े पहने। आप शादी पर प्लेन कपड़े नहीं पहनते, इस पर कढ़ाई होती है, तो फूल बूटे होते हैं। खातन जो है उनके दबका लगा हुआ होता है, सिल्मा सितारा होता है, यानी मुकेश होती है, कनारी होती है, वो बिट्स लगे होते हैं, नवा अकसाम के फूल बूटे लगते हैं। ये जो तरबियत है ना, ये आपके सादा कपड़ों को, सादा शख्सियत को फूल बूटे लगा, और ये जो फूल बूटे ना, ये आपको खुशी देते हैं, लोगों को नुमाया करते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने किरदार पर तरबियत के अगर फूल बूटे लगा दें, अब वक्त पाबंद हो जाएं, दूसरों की मदद करने वाले हो जाएं, हम दूसरों का सहारा बनने वाले हो जाएं, तो यही इंसानियत है। और यही अल्लाह चाहता है कि आप अपने जैसी मखलूक को सुधारें, तरबियत दें। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा मैं लीडर बनाकर भेजा गया, उन्होंने कहा मैं सिपह सलार बना के गया, उन्होंने कहा मैं हकीम और दाना बना के गया, उन्होंने ये कहा कि मैं मुअल्लिम बना। और मुअल्लिम की ये जिम्मेदारी है कि वो भटके हुओं को सही रास्ते पर लगाए, जो मंजिल से दूर है उन्हें मंजिल तक ले आए, जो रास्ते से भटक गए उनको सही रास्ते पर चलाए, सही ट्रैक पर ले आते हैं। तो असल में अंबिया का, अइम्मा का, औलिया का यही काम था कि वो भटके हुओं को राह दिखाते थे, वो मंजिल तक ले आते थे, और वो लोगों को निशान मंजिल देते थे, और वो कामयाबी का पता देते थे, वो लोगों को अल्लाह तक पहुंचाते थे। हमें ये वाला काम करना है और हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनकी मुश्किलात को दूर करें, और हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के जो लोग हैं, बचपन से उनकी ज़हन साजी, किरदार साजी, तामीर शख्सियत का काम करें, ताकि हमें इसके अच्छे नतीजे मिले। सर एक और बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हम लोग जो है ना वो बहाने तलाश करने में नंबर 1 पर हैं। मैं सर कल एक बुक पढ़ रहा था, तो अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, टाल मटोल, ले तो लाल से काम लेना, आज के काम को कल पे छोड़ना, मुखर करना। जी, तो सर वो एक बुक में पढ़ रहा था, तो वहां पे था कि जब हम अपने जहन में कोई विजन नहीं रखते ना, अपने काम के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, कि मैं इस दुनिया के अंदर आया हूं तो मेरा आखिर कोई ना कोई मकसद है इस दुनिया के अंदर आने का, और जब वो अपने ख्वाब नहीं बनाता, अपने ख्वाबों की तरफ नहीं चलता, अपने ख्वाबों पे काम नहीं करता, तो तब वो बहाने तलाश करता है, तब वो रीजन तलाश करता है। मेरे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है, मुझे तो कोई बड़ी जो सेलिब्रिटी है वो जानते नहीं है, मेरा तो वक्त गुजर चुका, मेरी एज गुजर चुकी, मेरा रंग काला है, मेरा कद छोटा है, फिर इस तरह के बहाने तलाश करता है। मैं तो एक देहात से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा? जब इंसान के अंदर विजन नहीं होता तब ये सारे बहाने तलाश किए जाते हैं। देखिए बात ये है, ये एक्सक्यूजेस जो है ना, दुनिया इसको नहीं मानती। ये बहानेबाज शख्स एक दफा तो किसी बात से बच जाएगा, हर दफा वो एक रूप से दूसरों को बेवकूफ नहीं बना सकता। जी, तो दुनिया ऐसे बंदे को पीछे कर देती है, वो किसी मुकाबले में भी ले जाती है। हमें चाहिए फिर वही है कि हमें अपनी शख्सियत को संवारने के लिए खुद फिक्रमंद होना चाहिए। ये जो शिकवे शिकायतें करने वाले लोग हैं, निजाम को बुरा भला कहने वाले लोग हैं, वालिदैन को गलत कहने वाले लोग हैं, असातिज़ा पर इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, या हुकूमतों पर तबर्रा करने वाले लोग हैं, ये दरहकीकत खुद कुछ नहीं करते। ये दुनिया जो है ना सर, एक बात ज़हन में रखें, दुनिया इम्कानात की दुनिया है, ये दुनिया मवाक़ी की दुनिया है। यहाँ हर शख्स को सूरज एक जैसा मिलता है, उसको दिन मिलता है तो पूरे 12 घंटे का मिलता है, रात मिलती है तो पूरे 12 घंटे का मिलता है।
या किसी के लिए 24 घंटे नहीं है, किसी के लिए 36 नहीं, किसी के लिए 12 घंटे नहीं, सबके लिए टाइम यकसा है, माहौल यकसा है, बस उसको मेहनत से अपने आप को सुधारना है। पीतल को गर्म भट्टी की आग में झुलस कर सोना बनना पड़ता है, कुंदन बनना पड़ता है। तो जो शख्स भी मुश्किल हालात का सामना करता है, जो जितनी मुश्किल को सहता है, उसमें जीता है, आसानियां पैदा करता है, वो उतने बड़े मनसब का, उतने बड़े जिसको आप कहते हैं ना इनाम का मुस्तहिक ठहरता है। अंबिया से ज्यादा मुश्किलात तो नहीं आई ना सर, हमें तो बहुत सारी आसानियां मिल रही हैं। हमें तो, मैं कहता हूं कि हम ये जो नाशुक्री का बीज जिन दिलों में होता है वही उनको कुफर की तरफ ले जाता है, और शुक्रगुजारी के बीज जहां बोए जाते हैं वहां फलदार दरख्त पैदा होते हैं, और वहां समरबार और बर्दोबार लाते हैं वो लोग, वो बीज जो है। असल में हमें चाहिए ये कि हम, फिर वही बात है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर हो। हम लोगों को, मैं ये कहा करता हूँ, बच्चों को बड़ी सोच दें, बड़े ख्वाब दें। बड़ी सोच जो है बड़ी मंजिलों का पता देती है, और बड़े ख्वाब जो है बड़ी ताबीर लाते हैं। हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को बुनियाद से दुरुस्त करने की कोशिश करें। वो लोग जो आपको मनफी सोचों के, मनफी तर्जमल के इंसान मिलते हैं माशरों में, वो डॉक्टर भी बन जाते हैं, वो जज भी बन जाते हैं, वो इंजीनियर भी बन जाते हैं, वो साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, वो बड़े जिम्मेदार भी बन जाते हैं, वो बड़े जागीरदार भी बन जाते हैं, वो बड़े संस्कार भी बन जाते हैं। सोच मनफी होती है तो उस मनफी सोच पर कोई तारे नहीं जलते, जगमगाते, वहां कोई फूल नहीं होते, वहां घुटन होती है, अंधेरा होता है। बज़ाहिर वो लोग कामयाब होते हैं, दरहकीकत वो नाकाम होते हैं। कामयाब शख्स वो है जो बैलेंस के साथ चले, इत्तलान और तवाज़ुन के साथ चले, अपने आप को समझे, और फिर अपने आप को समझते हुए, अपने आप को डिस्कवर करते हुए सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा, मैं ये बात कल भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि आपने दुनिया के जिस मकाम पर पाया ना, इसको 1 इंच से ऊपर ले आओ। आपने यहाँ अंधेरा पाया है तो अंधेरे का एहतजाज न करें, इसके लिए प्ले कार्ड न उठाएं, नारे न लगाएं, तकरीर न करें, बल्कि अंधेरे का एहतजाज करने का कोई हक नहीं है आपको। आप बस एक दिया सलाई लाएं। अंधेरे के खिलाफ जिहाद यह है कि आप दिया सलाई लाएं, रोशनी हो जाएगी। और फिर दिया सलाई से दीप जलता है, चिराग से चिराग जलते हैं। तो आप बस चिराग जलाते रहें, अल्लाह ताला इसमें आसानियां पैदा करते हैं, और आप चिराग से चिराग जलते रहेंगे। हमें दुनिया को, हमने जिस हालत में पाया, हमें दुनिया को उससे बेहतर हालत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को भी, समाज को भी। समाज में अगर हम कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हमें इंफरादी तौर पर भी बेहतर से बेहतरीन का सफर करना है, हमें इंफरादी सतह पर बेहतर से बेहतरीन का सफर करना है, और हमें इज्तिमाई सतह पर भी बेहतर से बेहतरीन का सफर करना है। हमें इंफरादी सतह पर भी उम्दा से उम्दा तरीन का सफर करना है, और हमें इज्तिमाई सूरत में भी ये मुआशरा जो है वो यकीन करें उम्दा से उम्दा तरीन के सफर को आसान बनाता है। आप जरा थोड़े से मजबूत कदम कर लें, इरादा पुख्ता कर लें, तो मंजिलें आपके कदमों में आ जाती हैं। शर्त फिर वही है कि आपको पहले कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, पहले कुछ कोशिश करनी पड़ती है आपको पहले। यहाँ फिर ये भी याद है कि इस सारे काम की रहनुमाई अल्लाह पाक ने आसमान से हमारे लिए कुरान पाक की सूरत में उतारी हुई है। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है बेहतरीन नमूना है। आप हमारे लिए बेहतरीन हिदायत का सरचश्मा है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए, और दूसरों की जिंदगी में भी आसानियां लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती बातें बताई और अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह एक नए मौजू पर जल्द ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।